You know that feeling when you're in a friend group and you always seem like the odd one out? Like the group chat always seems to be active, but when you send a text, everyone takes a couple minutes too long to respond. It's a feeling that can make you really insecure. I think. I don't know. I've never experienced that. Not once in my life. But that feeling is something that Andrew Tate's fourth best friend, Justin Waller, can very much relate to. I first came across Justin on my For You page, and my first thought was, oh, here's just another alpha male podcaster trying to promote his course. But then I saw this clip of him on the Whatever podcast. Oh, you're a man of self-control. You work out, you do business. Yeah. You can possess your own power and direct it the way you want to direct it. It's not how I am. It's not how I am. You think that might be a limited mindset? I think it's none of your business, but I don't want you to think I'm triggered by you. I'm not. Okay. I think you're annoying, but I'm not triggered. You know what I'm saying? No, you are. You're annoying in like this goody two-shoes type way, and that's fine. For those of you with the great fortune of not knowing who Justin Waller is, I envy you and I apologize for what I'm about to do. Justin is a CEO of Red Iron Steel Construction Company, but he's more well known as being one of Andrew Tate's henchmen. And now that the Tate brothers have been facing some complications with their image, they've sent Justin out to promote Hustlers University for them. Sorry, it's actually the real world now, because apparently only people who buy this course are in the real world and everyone else is in a fake fantasy world where you have to do things like work and be well-adjusted members of society. And his messaging is basically the same as the Tate brothers. All of men's problems can be solved with money and working out. And women should be more traditional or else they're dirty, icky. Which makes this clip even more funny because the woman he's calling annoying here is Lila Rose, which if you do a quick Google search, she is the textbook definition of what these alpha males would call a traditional woman. Also, is there an unspoken rule where if you play trap music in the background, people are gonna take them more seriously? All right, Ray, what's 2 + 2? 5. No, Ray, that is incorrect. What if I played this? Wow. I mean, you're still wrong, but slap. So now that I was hooked and intrigued on what this obviously well-balanced and respectful man had to say, I think you're annoying, but I'm not triggered. I dove down into the rabbit hole to find what other pieces of wisdom he could bestow upon us. If people are going to tell me I shouldn't have children with multiple women, my argument to that is, okay, asshole, you got married to this girl, you were a husband, she left your ass, and you got married to this one and had kids. Now you have step parents and all this messiness involved. I think there might have been a... So the point of generalization is something that you're saying that applies to a very vast range of group of people, jahan pe, yes, there will be few people who have remarried, there's nothing wrong with that as well. Plenty of reasons, jaise people's marriages may, fall out, may not work out. But the point of generalization is you don't get to selectively pick one thing and then उस एग्जाम्पल को जिसको नैरेटिव मैं खुद लिखूंगा, ओके, तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी हुई है इसलिए मेरा चॉइस बेटर है. तुम्हारी चॉइस हैज टू बी बेटर का जो रैशनल है, रीजन है, should come from sensibility, from something that makes sense without having to find the worst example from the other side. अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी चीज का आर्ग्यूमेंट है that there is a worse thing outside, इसलिए my thing is better. Oh, यार तुम अपने दोस्त की सुसु क्यों पीते हो? क्योंकि मैं कोई एक इंसान है कहीं बाहर जो पॉटी खाता है अपने दोस्त की. Drinking सुसु seems much better than consuming excrement. ये कोई आर्ग्यूमेंट थोड़ी है. तो ये आर्ग्यूमेंट यूज कर रहा है यहां पे ये इंसान. हमें आर्ग्यूमेंट यूज कर रहा है, हाउ इज इट सेंसिबली वर्किंग आउट फॉर यू विच इज लीडिंग टू वेल एडजस्टेड लाइफ्स ऑफ एवरीबडी इन्वॉल्व्ड. देन साइंटिफिकली, साइकोलॉजी, रिसर्च, यानी कि नोन है ये चीज, एम्पेरिकल एविडेंस से नोन है कि ये चीज एक्चुअल में सब को बेनिफिट करती है. सो फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें बुली क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए क्योंकि नोन है एम्पेरिकली फ्रॉम इनफ एग्जाम्पल्स कि बुली, जो दूसरी पार्टी जिसको तुम बुली कर रहे हो, उसको ट्रॉमेटाइज कर सकती है लाइफ के लिए, उसको पीटीएसडी मिल सकता है. तो ये एविडेंस है हमारे पास जिसके बेसिस पे हम एक जनरल आर्ग्यूमेंट मेक कर सकते हैं कि ये चीज जनरली बैड है. बहुत ही खराब चीज रख दो, यू आर अ हस्बैंड, तो तुम खुद ही अपने एग्जाम्पल में पुट कर रहे हो एक खराब एग्जाम्पल, और फिर उससे अपने आप को कंपेयर करके तुम अपने आप को अच्छा दिखा रहे हो. That's not a sensible argument on why you should have 3 wives.
couple steps between having 3 families at once and whatever worst case scenario he's describing here. Hey man, you've had a lot to drink tonight. Maybe you should take a break. Okay, asshole. If you have such a problem with me drinking, at least I'm not like you, going back behind dumpsters and doing all the time. Dude, I'm 5 years sober. Oh, nice. Congratulations. So he explained the same thing. You want to do some Just because someone doesn't have 3 spouses doesn't mean the alternative is a string of bad marriages and partners. Making a straw man argument like this doesn't excuse your inability to be mature and commit to a single partner. Well, what if I was just a good father and a good husband to 2 or 3, and they all looked up to dad, and I was making all 3 of those families' lives? 10x would it have been if they would have got with your lame ass? Or you think I don't believe in family? I believe in family 3x more than you. I have 3 families. As someone So just see it that way. मैंने क्या कहा, empirical research, right? Attachment की I think सबसे बड़ी research जो थी उसका अभी तक claim, I think 2017 तक claim ये था attachment research में सारा कि you know attachment figure के लिए एक primary caregiver के साथ attachment important होता है, यानी कि माता को रखते थे लोग. तुम्हारी जो रिसर्च भी थी स्टार्टिंग की उसमें भी माता के साथ ही तुम्हारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो उनके साथ हुए थे. तुम्हारी एल्सवर्थ मैया ने जो जितने भी वो किए थे माता जी ने एक्सपेरिमेंट बच्चों के, वो हमने माता जी के साथ किए थे, जहां से तुम्हारे अटैचमेंट थ्योरी को समझ लो फ्लैश आउट किया था स्टाइल्स में. 2017 में पता चला उन्होंने चेंज किया कि एक्चुअल में प्राइमरी केयर गिवर ही नहीं, दोनों माता पिता के साथ अटैचमेंट फिगर सेपरेटली बिल्ड होता है. जिन लोगों के अटैचमेंट पिताजी के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं उनके में उन्होंने पाया भाई एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम्स होती हैं. जिनको में माता के साथ होती है उन्होंने पाया इंटरनलाइजिंग अटैचमेंट में प्रॉब्लम्स होती है, उनका इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम्स होती हैं. अब ये सब चीज़ें तुम पढ़ सकते हो. एक्सटर्नलाइजिंग मतलब हो सकता है अग्रेसिव बिहेवियर, यानी पिताजी से अगर प्रॉब्लम है, सेंसेशन सीकिंग हो सकता है, सेक्सुअली रिस्की बिहेवियर, ये सब हो गया. इंटरनलाइजिंग में हो गया भाई सेल्फ एस्टीम, ये वो. ठीक है, एक इंसान की जिंदगी की बैंडविड्थ को अगर हम कंसिडर करें, तुम्हारे पास काम है करने को, तुम्हें सोना भी है 8 घंटा, 16 घंटे तो इसी में चले गए. 1 बच्चा 2 बच्चा एक परिवार में, that will take all your time from the point of view of attachment, because parenting की अपनी अलग problems होती है. Parenting is not just spending time with your child, by the way. Parenting is problem solving, figuring stuff out, because इसको ऐसे solve करना है, इसको ऐसे solve करना है, ये यहाँ कहाँ जा रहा है. आपको इतनी decision making involved होती है, आपको दूसरे parent के साथ ट्यून में होना एकदम ही. So पिता और माँ वो हैं बढ़िया जो अपने बच्चे के लिए शो अप करते हैं, क्योंकि एक बच्चे को तुम जब छोटे थे तुम्हारे पिता और माँ दोनों चाहिए थे, रोज चाहिए थे. ये है अटैचमेंट थ्योरी कुल मिला के. अगर तुम्हारी 3 फैमिलियां हैं, तुम्हारा काम है, तुमको सोना भी है, बाकी तुमको सोशल मीडिया पे वो भी बनाना है, तुमको बिजनेस भी करना है, तुमको अपने आप को अल्फा फिल्फा भी करना है, तुम कब अपने बच्चों के साथ बैठ रहे हो? हफ्ते में ऑलमोस्ट एक बार तुम टाइम बिता रहे हो भाई एक बच्चे के साथ. ये सिंपल कॉमन सेंस टाइम मैनेजमेंट बता देगा तुम्हें इम्पॉसिबल है. ये मेरी हाइपोथेसिस है. इन लोगों के हिसाब से, इन बेवकूफों के हिसाब से घर में पैसा भेजना इज इक्वल टू बीइंग अ गुड पेरेंट, जो कि अगेन विल क्रिएट अटैचमेंट प्रॉब्लम्स. बच्चे को, छोटे से को अपने पिताजी चाहिए होते हैं, हमेशा अपनी माँ चाहिए होगी, उसको पैसा नहीं चाहिए. छोटे बच्चे को पैसे का कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आता. जब बड़ा हो जाएगा ना तो उस जिंदगी में हमेशा उस पैसे में ही रहा था, तो उसको वैल्यू ये नहीं होगी कि मेरे पापा ने एटलीस्ट पैसा भेजा. उसको होगा कि भाई मुझे तुम चाहिए थे. ऐसे घरों में जिनकी परवरिश हो रही है वो प्रॉब्लम से युक्त होंगे क्योंकि पिताजी नहीं है घर पे. एक और पर्सपेक्टिव से तो तुम यहां पे सोच सकते हो, अगर तुम्हारे पिताजी की 3 फैमिली और चल रही होती या 2 फैमिलियां, तुम कैसा महसूस करोगे कि वो इंसान तुम्हारी माँ के अलावा 2 और रख के बैठा है, 2 और फैमिलियां अलग उस इंसान की. क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे साइकोलॉजिकल वेलबींग पे, परसेप्शन पे, अटैचमेंट पे, इन सब चीजों पे, ट्रस्ट पे, इन पे फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा. द वे यूर ग्रोइंग अप तुम हमेशा फील करोगे लेफ्ट आउट, बिकॉज तुम्हें लगेगा दूसरी फैमिलीज के साथ भी इंसान है, उसके दूसरे बच्चे हैं, मेरी क्या इंपॉर्टेंस है. भाई इतने सादा कॉम्प्लेक्स है ना ये, जिसको मैं बता रहा हूं. मूर्खता की बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? मूर्खता मास्क करती है अपने आप को कॉन्फिडेंस से. समाज में डरावनी बात यह है कि हम कॉन्फिडेंस को कॉम्पिटेंस की तरह देखते हैं. तो मूर्खता को कॉम्पिटेंट दिखने के लिए बस कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है. हम कभी वेरीफाई करते ही नहीं है ये मूर्ख जो बात बोल रहा है इतने कॉन्फिडेंस में, ये बात का तथ्य क्या है, इस बात का एक्चुअल में साइंटिफिक एविडेंस क्या है, कॉमन सेंसिकल एविडेंस क्या है, सेंसिबिलिटी कितनी है इसके अंदर. इसको अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करूं तो, और मैं एम्पैथी एम्प्लॉय करूं कि वो इंसान कैसा महसूस करेगा, तब तो पता चलेगा एक्चुअली 3 वाइफ्स है तुम्हारी 3 बीवियां कैसा महसूस कर रही हैं कि तुम किसी से लॉयल ही नहीं हो. पहला, लेट्स से भाई हमने बना दिया उनको किसी तरह से, पैसे से लेके कन्विंस कर दिया. इंडिविजुअल ऑटोनॉमी हमेशा मांग करेगी कि मेरा हक का मुझे मिले.
ये बिहेवियर होता है, कोई इंसान शेयर नहीं करना चाहता है यार। मैनिपुलेशन भी टेम्पररी होता है, 6 महीने वर्क कर जाएगा, 6 साल वर्क नहीं करेगा ना, एक टाइम फिर इंसान कहेगा मैं ढूंढ रहा किसी और को। इन्हीं के ही जो भी होंगे वो कहेंगे हम ढूंढ रहे किसी और को, या फिर वो पीछा फेर चल रहे होंगे, इनको पता भी नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, इतनी खिचड़ी है ना रियल लाइफ में। ये रियल लाइफ पॉइंट है ना, हमारे पास डेटा का सोर्स भी तो यही है। अब ये हमें जो नैरेटिव रच दे रहे हैं, हमें लग रहा है शायद यही है ऐसा नैरेटिव। असलियत कुछ और होती है। असलियत का बहुत दूर का रिश्ता है फिक्शन से। तुम जैसे जिंदगी बुनना चाहते हो वैसी होती नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम एक इंसान हो, और इंसान जब इस कॉन्फिडेंस से कहता है मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में है, वो उतना ही बहकावा, उतना ही वहम में जी रहा है। ये ईगो है ना, यही तो मैं है, यही तो वहम है। इसी को तो तुम्हारी पूरी ईस्टर्न फिलॉसफी कहती है कि सबसे बड़ा वहम यही है, मैं अपनी ताकत से कंट्रोल कर सकता हूं। ऐसा मुंह के खा के गिरोगे एक दिन, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। क्योंकि ह्यूमन नेचर ताकत पे नहीं चल पाता लंबा। बड़े बड़े डिक्टेटर गिर गए, बड़े बड़े एम्पायर गिर गए। कितने दिन चला लोगे? मैं नहीं कह रहा 3 साल नहीं चलेगा, मैंने कह रहा 10 साल नहीं चलेगा, एक दिन टूटेगा सब कुछ। तुम्हें तुम्हारी औकात भी पता चल जाएगी। इसलिए हर धर्म कहता है हम्बली सबमिट करो किसी को जो मैं से ऊपर है। मैं तुम्हें तबाह कर देगा, क्योंकि ईगो की पूजा तुम्हें तबाह कर देगी। ये मैं की पूजा करने वाले लोग हैं, इनकी ईगो देख के पता चलता है। ये इस लेवल के वहम से आ रहे हैं, डिल्यूजन से आ रहे हैं, जिसकी हद नहीं कि मैंने सब फिगर आउट कर रखा है। क्या है उसका बेसिस? मैनिपुलेटिव कंट्रोल। आंसर क्या है तुम्हारा? मैं एटलीस्ट जो सबसे वर्स्ट एग्जांपल है उससे बेहतर हूं। रियलिटी का प्रदान कितना कर रहे हो तुम? 0। हमें क्या पता रियलिटी क्या है? हमें क्या पता कितनी कॉम्प्लिकेशंस, हमें क्या पता पीछे कितने अफेयर चल रहे हैं उनके, क्या जीवन है, क्या बात भी नहीं करते, बच्चा कितना देखता है अपने बाप को, हमें कुछ पता है इसका डेटा? कितना टाइम स्पेंड कर रहा है? लॉजिकली और रीजनेबली सिंपल तो अपने हाथ में काउंट कर सकते हो। तो भाई 3 अगर फैमिलियां हैं, तो भाई वो घंटा देख रही है बच्चे को, तुमको घंटा टाइम मिल रहा है भाई बाप से मिलने का। ये तो भाई फैक्ट है। तो अटैचमेंट में तो 100% बच्चों के फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पैसा, सिर्फ पैसा प्रोवाइड करने से, भेजने से, माता पिता का प्यार को तुम तोल नहीं सकते पैसे से। कि मेरे पापा प्यार करते हैं मुझसे, क्यों? क्योंकि आग बंद करे पैसा भेज देते हैं, पापा दिखते ही नहीं है हफ्ते में। Someone of Asian descent, I've always been taught from a young age the importance of family principles. You know, things such as remembering family birthdays, always visiting home often, and always fastening your seatbelt before driving out of a C-130 at an altitude of 30,000 feet in your 69 Dodge Charger. With family, of course. But apparently Justin knows 3 times more about family because he has 3 families. The same way he probably knows 3 times more about the 3rd grade because he had to take it 3 times. I didn't say I didn't have family or children. I just said it was none of your business. Justin has enemies. I might have multiple family. Oh. You never know. I might like family more than you. So much I have 5. It's clips like these that really show what Justin thinks being a good father is. He clearly thinks it's about spending quality times with your kids, cherishing every single moment, being there for every single football and soccer game, making sure to be there for them when they have a tough day at work. Oh, sorry, gotta go. What do you mean you have to go? Samantha said Justin the 3rd is sick, so I gotta hop. You can't just leave in the middle of this. Justin the 2nd was just bullying someone. We have to go pick him up from the principal's office. Yeah, frankly, I like Justin the 3rd better, so... I love this. This is the real. As real as it can. कल मैं कहा कि तुम्हारे स्कूल में था, एंड वहां पे एक पेरेंट बेचारा लिटरली हमें समझा, उसका बच्चा जो भी है, अब मैं किंडरगार्टन की बात कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई विटनेस्ड। आई वाज देयर टू पिक हर अप, एंड जो टीचर से वो बता रहे थे, बड़ी प्यार भरी वैसी कॉन्वर्सेशन थी, बहुत ही काइंड एक्सचेंज था। बट दिस इज द कॉम्प्लिकेशंस। वो बिजनेस पर्सन था कोई, मैं क्योंकि जहाँ तक बात सुन रहा था उसकी, वो बिजनेस ट्रिप से अपनी वापस आया था अपने बच्चे को पिक करने, और बेचारा बड़ा परेशान था कि बच्चा इज एक्टिंग आउट इन स्कूल, किसी तरह से एडजस्ट नहीं कर पा रही है बेचारी उसकी बेटी। एंड दिस इज व्हाट पेरेंटिंग इज। वो फिगर आउट कर रहा है कि हमने क्या करना चाहिए। घर के अंदर हम लोग उनको बता रहे थे कि हम लोग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करें, बच्चे ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसने ये नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे घर के अंदर आपको ये करना पड़ेगा, माता पिता को खेलना पड़ेगा अपने बच्चे के साथ, इससे ताकि वो थोड़ा सा यूज्ड टू हो। वो ये चीजें होती हैं यार, ये पेरेंटिंग ये है। एक बच्चे पे इतना ध्यान देना पड़ता है ना कि बिहेवियर, अगर आप चाहते हो एक बहुत ही वेल बैलेंस, खूबसूरत, बढ़िया बच्चा पैदा हो, आपका एक बहुत ही बढ़िया मनुष्य में कन्वर्ट हो, स्टेबल मनुष्य में कन्वर्ट हो, कॉन्फिडेंट, सेल्फ एस्टीम से युक्त, तो आपको बैठना पड़ेगा अपने बच्चे के साथ, आपको उसकी नीड्स की पूरी समझना पड़ेगा। उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है क्योंकि अभी, क्योंकि वो फुली ग्रोन पर्सन नहीं है। सारी आदतें अभी बिल्ड हो रही हैं उस इंसान की, कैसे वो दुनिया को देखता है वो बिल्ड हो रहा है। अभी सबसे ज्यादा केयर करनी पड़ेगी अपने बच्चे की, और बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ, काइंडनेस के साथ सुनना पड़ेगा बच्चे को, उसको समझाना पड़ेगा दुनिया कैसे चलती है, दुनिया क्या है, तुम्हें दुनिया के साथ कैसे डील करना है, कैसे नेगोशिएट करना है, सब सिखाना पड़ता है। अपने आप से कुछ नहीं आता, वरना वो खराब चीजें सीखेगा बच्चा, और आगे चल के वो चीजें बैकफायर करेंगी बच्चे के लिए। तो तुम कहां से 3 फैमिली है, तुम घंटा नहीं जा रहे हो,
माँ जा रही बेचारी अकेले, हो सकता है कोई नैनी जा रही होगी। एक चीज समझ लेना, बाप होना, बायोलॉजिकल फादर और एक फादर में डिफरेंस है। पिता जो अपने बच्चे को रेस कर रहा है वो है पिता। पैदा करना इज नॉट एन एक्ट ऑफ फादरहुड। दैट्स तुम ठीक है बायोलॉजिकल, तुमने एक सीमन अपना प्रदान कर दिया, स्पर्म प्रदान कर दिया तुमने, तुम बाप नहीं हो। तुमने बाप होने वाला कोई काम नहीं किया। बाप वो होता है जो अपने बच्चे के लिए खड़ा होता है, बच्चे को गाइड करता है, बच्चे को बड़ा होने में, एक आदमी बनने में, या एक लड़की को एक सभ्य सशक्त इंडिविजुअल बनने में फाउंडेशन प्रदान करता है। मां के साथ गजब एग्जाम्पल सेट करता है। चाहे वो अगेन सेपरेटेड हो, चाहे वो मैरिड, उससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों लोग कर सकते हैं ये अपने बच्चों के लिए। तुम एक पूरे छोटू गुल्लू मुल्लू के पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हो कि इसको हम बहुत बढ़िया इंसान बनाएंगे, और वो तुम्हारे हाथ में है। Anyways, here's $50,000. All right, bye. Man can love his wife with all his heart and want nothing more than be a good father, a protector, tuck his children in, hold his wife at night. But if you think that he doesn't want to get on the side, you have lost your mind. You know that one kid in class who always ate his boogers and then he tried to convince everyone else that it's a normal. Yeah, by the way, also, he generalizes these things. Now, here's the thing. I'm going to take it very differently on like just crapping on him. एक्टिव फैंटेसीज लेट्स से हर कोई कर रहा है, उसमें कोई बुरी चीज नहीं है। बट द थिंग इज दैट ये कहना जनरली हर इंसान की जिंदगी में ये करना चाहता है, अपने परिवार में बहुत प्यार करता है, और इसका मतलब ये नहीं कि वो नेबर वाली लड़की को देख के ये नहीं कह रहा कि नॉट ट्रू विद एवरीबडी। इट्स एज सिंपल एज दैट, नॉट ट्रू विद एवरीबडी। श्योर पापा के साथ आप लोग जोक भी करते हो, कितने की टीवी पे कोई हो जाता है उनकी फेवरेट एक्ट्रेस वो आ रही हो तो पिताजी तो बैठ के हा 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 कर रहे हैं। कोई तो हमारे पिताजियों के टाइम की अगर बात कर लो, हो सकता है माधुरी दीक्षित हो, श्रीदेवी हो, जिन पर उनका क्रश हो। सिमिलरली हो सकता है तुम्हारे माता जी का क्रश हो धर्मेंद्र पे, या बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर हम कह रहे हैं एक्टिव फैंटेसी इस तरह से, वो एक इनोसेंट चीज हो जाती है जहां पे आप कह रहे हो कि भाई ये हार्मलेस है। दूसरी चीज आप ये कहना कि हर आदमी दुनिया में मनुष्य ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता जिनकी जिंदगी की प्रायोरिटी ये नहीं रही, अब जिनको वाकई अपने परिवार से प्रेम है, जो नहीं सोच रहे। मतलब ठीक है कोई अगर सुंदर दिखा तो वही मैं कह रहा हूं ना, वो आप सोच सकते हो कितना सुंदर इंसान है, बट उसका तो मूव ऑन करेगा। उनको पता है मेरी जिंदगी क्या है, ये मेरा रोल है, ये मेरा रोल नहीं है दूसरी लड़कियों के पीछे ये सोचना कि मैं अरे यार काश मिल जाए। दिस इज अ टाइप ऑफ पर्सन ओनली, एंड मैं नहीं कह रहा भाई वो पर्सन की परसेंटेज कम होगी, बट दैट्स नॉट इन जनरल, दैट्स मेस्ड अप। आई डोंट थिंक you've met people then जो ऐसे होते हैं, because I've met plenty of those people who are very happy in their relationships, very happy and fulfilled, and उनके मुंह से कोई ऐसा ख्याल नहीं आता। हर कोई 14 साल का नहीं है जीवन में। ये लोग एक दूसरे सेम तरह के लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, और क्योंकि इन्होंने ऐसे ही लोग ढूंढ ले जो इनकी तरह ही हैं, तो ये वही बातें करते रहते हैं। और ये बातें पता क्या कर रहे हैं, ये एको चेंबर में आके फिर इसको जनरलाइज कर रहे हैं कि हर आदमी का इंसान दुनिया का ऐसे होता है। That's my hypothesis. Normal thing to do, and that everyone did it. Well, apparently he grew up and became a misogynist. Justin's arguments so often come down to thinly veiled generalizations that are easily shattered with one Google search or just a conversation with a normal person. If your wife said that you could bring a smoking hot 22-year-old blonde over and y'all could both do it, would you do it? If he tells you no, he's a liar. Liar. Okay, I don't know, man. I will say that I couldn't do it. So there you go. He literally posited a hypothesis claiming कि हर इंसान करेगा, and right in front of him with a sample size of 2, 50% didn't want to do it. I'm like one person. I love this. अरे सब ऐसे नहीं सोचते जैसा मैं सोचता हूं। मुझे लगता है दुनिया में हर इंसान सोचता है, क्योंकि मैं अपने वन सैंपल साइज को जनरलाइज करता हूं। भाई तुम हो ऐसे, तुम हो अभी भी 14 साल के बच्चे। अनफॉर्चुनेटली जीवन में 14 साल के बच्चे की रियलिटी को कब तक पकड़ के बैठोगे? जब तक मर नहीं जाओगे वही सोचते रहोगे जो 14 साल में सोचते थे हम सब। या एक बार आता है जीवन में सोचने का कि भाई मैं इस संसार को जब देखता हूं तो कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं मेरे अंदर, उन प्रश्नों का उत्तर क्या है, आओ उस पर थोड़ी सी बात कर लें। या जिनको भी मैं राय दे रहा हूं, अगर मैं इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा हूं तो कम से कम ये सोचूं कि 14 साल के बच्चे देख रहे हैं, 12 साल के बच्चे मुझे देख रहे हैं, 18 साल के बच्चे देख रहे हैं, 24 साल के बच्चे देख रहे हैं। मुझे कुछ लोग देख रहे हैं जिनको हो सकता है डिसऑर्डर्स हों, टेंडेंसीज हों, जो उनको शायद एक्सट्रीम्स में पुश कर दे, और मेरा धर्म बनता है कि मैं उनको उस एक्सट्रीमिटी से निकाल के उनको एक हेल्थी पथ पे लेके आऊं। एक कर्मयोग ये होना चाहिए जीवन में इंसान का कि भाई मेरा अगर धर्म ये है कि मैं बैठ के एडवाइस दूंगा, तो मेरी एडवाइस ये होनी चाहिए कि मेरे को ये नहीं सोचना है कि भाई जो लोग की जिंदगी में थोड़ी फिर भी
वो इन अ सेंसिबल वे सोच पाते हैं, उनको एडवाइस देनी श्योर, बट मुझे देखना है जो सबसे एक्सट्रीम में जो हैं उनको कैसे हमें वापस लेके आ पाऊं कि वो लॉन्ग टर्म में खुशहाली, सेटिस्फैक्शन मिल पाए उनको जीवन में, और प्रॉस्पेरिटी, बहुत प्रॉस्पेरिटी मिले, खूब बढ़िया काम करें। तो वर्कआउट करना इज अ वेरी गुड एडवाइस, दैट्स व्हाई। पैसा कमाना इज अ वेरी गुड एडवाइस, एंड उसको पुश करना इज अ वेरी गुड थिंग। क्या आप उसके सामने अंगूर लटका रहे हो जिसको देख के उसको लगे हाँ मैं वर्कआउट करना चाहता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंगूर हैं एकदम 14 साल के बच्चों की तरह डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज, सेक्सुअली डिस्ट्रक्टिव होना, घर तबाह करना, बच्चों की जिंदगी तबाह कर देना। क्योंकि आप अगर 34 में ये जिंदगी जी रहे हो 14 साल की, तो आप अपने बच्चों को भी क्या शिक्षा दोगे? आप कैसे रोल मॉडल बन रहे हो? आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल तो है ही नहीं ना। मैच्योरिटी का डायरेक्ट लिंक, अगर एक वर्ड में मैच्योरिटी को कोई भी इंसान कहे कि डिस्क्राइब करो, क्या होता है मैच्योरिटी? सेल्फ कंट्रोल है वो। मैं अपनी भावनाएं, जैसे 14 पे जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था, 20 में मैं बेवकूफ की तरह पैसा कहीं भी बेल दूं, मेरे को कोई भी अगर उठा के कोई स्कैम समझाए, मैं उठा के पैसा फेंक देता था, मैं कितना बेवकूफ बन जाता था। अब मैं सेल्फ कंट्रोल ले आया हूं, मैं सुनता हूं चीजें, मैं पेशेंटली रिएक्ट करता हूं, मैं तुरंत रिएक्ट नहीं कर देता, मैं अंदर क्या फील कर रहा हूं भावनाओं में वो बाहर व्यक्त नहीं होने देता। सेल्फ कंट्रोल ये होता है कि आप कंट्रोल कर पाते हो अपनी सेल्फ को, ये मैच्योरिटी का साइन है। यहां पे इनकी बातें सुनो कि 22 साल की लड़की मिल रही हो तो क्या तुम ना कहोगे? बहुत सारे लोग ना कहेंगे। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये प्रायोरिटी ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रायोरिटी बहुत ही डिफरेंट काइंड्स है। कोई एक इंसान है जिसकी जिंदगी में बैठा है, उसको एकदम से एक दिन आया कि भाई मैं जब चौथा का था मुझे संगीत का बड़ा शौक था यार, यू नो व्हाट, मैं अभी 34 का हूं, मेरी हमेशा से हॉबी थी, मेरे पास लेट्स से मैं बैंक में काम कर रहा हूं, किसी बहुत ही बढ़िया अमेरिकन बैंक में, गोल्डमैन सैक्स में काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनके बारे में आई वाज वरीड अबाउट आर टेकिंग केयर ऑफ। यू नो व्हाट, आई विल गेट बैक टू माय हॉबी, आई विल गेट बैक टू म्यूजिक। वो उसी दिन जाता है एक शॉप पे, इंस्ट्रूमेंट्स खरीदता है, एंड दैट्स व्हाट इज ऑन हिज माइंड सिंस दैट डे, कि ही वांट्स टू बी द बेस्ट संगीतकार, म्यूजिशियन, गीतकार। लाइक लोगों की जिंदगियों की परस्यूट्स इतनी वेरिड है, इतनी डाइवर्स, मैं बता नहीं सकता। कोई इंसान, कुछ लोग होते हैं जिनका जेन्युइन इंटरेस्ट है बस माउंटेन्स, तो वो बैठ के पूरे दिन माउंटेन्स, इतनी इंफॉर्मेशन रख के बैठे माउंटेनियरिंग के बारे में, वो उनकी जिंदगी है पूरी। हर कोई नहीं 22 साल की लड़की, भाई तुम बच्चे हो क्या? जीवन को पूरी तरह से जीना ही नहीं सीखा हमने। जीवन को हमने रिड्यूस कर दिया किसी चीज में, एक चीज में। पूरा जो हमारा ब्रेन में इतना भयंकर तुम्हारा जो डेवलपमेंट हुआ है, ये जो पूरे पार्ट ऑफ ब्रेन का, उसका पॉइंट क्या था? अगर आप वही चिंपैंजी ही हैं तो Look, it's man. just, but I think that's how. But a bunch of people are wired different. But you don't think that it will be ultimately an opportunity for jealousy or disharmony amongst Women are always going to be jealous. What's changed I'm not about that? jealous in Women my have been marriage. jealous all the way through time. So. I'm not jealous. women are always, as if like that's jealousy is a woman's trait. This is another problem with these people कि I think इन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग कभी जिंदगी में सीखी नहीं। जो मैंने कॉन्फिडेंस वाली बात कही थी, इनका पूरा ठेला इसी पे चल रहा है। मूर्खता को कॉन्फिडेंस में रैप करके बेचो, मूर्ख लोग उसको कॉम्पिटेंस समझेंगे। समझदार लोग भी मूर्ख बन सकते हैं कॉम्पिटेंस समझने में, क्योंकि समझदार लोग भी कई बार जिंदगी में कुछ खानों में ऐसे होते हैं जहां पे वो परेशान होते हैं, बेबस होते हैं, एंड दे कैन बिकम विक्टिम्स टू अटर स्टुपिडिटी मास्क्ड एज कॉम्पिटेंस बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। मर्दों में जेलसी होती नहीं। यहाँ पे जितनी लड़कियां देख रही हैं, आपके एक्सपीरियंस से, आपकी लाइफ में जितने भी लड़के थे, वो जेलसी उन्होंने एक्सपीरियंस करी कि नहीं करी? ह्यूमन ट्रेट है भाई। Most women marry a man between 6 and 7 years older than them. Nope, that's also not true. Yep, thank you. 2.3, yes. I read this 2-3 days ago, so I was like, nope. They say, oh, you're insecure, you got to sleep with all these women to get validation. Bullshit. Men like to fuck. It's totally understandable why Justin only thinks men like to fuck. I would also think that if every word I said made my date dry up like a fucking desert. Like, I would say yes, men like to copulate without a doubt. Women like to copulate as well, without a doubt. By the way, इस पे बहुत बड़ी रिसर्चेस हुई हुई हैं, बहुत स्टडीज हुई हुई हैं, पूरा गेज करने के लिए कि क्या ये जो हाइपोथेसिस है कि मेन की ड्राइव, सेक्स ड्राइव हायर होती है वुमेन से, एंड ये कंटेस्टेड है, ऐसा कोई इस पे तथ्य नहीं निकला है साइंस के अंदर। मैं बता दे रहा हूँ कुल मिला के कि ऐसा है, दोनों की ही सिमिलर ही है कुल मिला के, एंड ये पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट है। हाउएवर, अगर हम सिर्फ मर्द के पर्सपेक्टिव से बात कर लें, श्योर, बट दैट ऑल्सो कुड मीन कि वी जस्ट वांना, समबडी कुड जस्ट वांना डू इट विद देयर पार्टनर। इस जनरल स्टेटमेंट को अगर हम कहते हैं, लेट्स से इट्स ट्रू एज वेल, भाई इतनी बड़ी पॉर्न इंडस्ट्री चल रही है, तो यानी क्लियरली डिमांड तो है। लेकिन अगर डिमांड है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है भाई कि उस डिमांड का मतलब ये नहीं है कि मर्द को, हर मर्द बस बहुत सारी लड़कियों के साथ करना चाहता है।
आपके अराउंड, आपको सिंपल अपने से सोचो, यूनिवर्सिटी में हो, तुम्हारे सारे दोस्त किसी ना किसी एक लड़की से प्यार करते हैं ना, इवन तो कुछ चल नहीं रहा, तो वो क्या करना चाहते हैं? उस लड़की के साथ होना चाहते हैं ना, रियलिस्टिकली, फैंटेसी से नहीं, रियलिस्टिकली वो क्या चाह रहे हैं, एक्शंस में क्या दिख रहा है, तो तुम्हें दिखेगा वो सब, जिस भी लड़की के पीछे क्रश है उसके साथ चाहेंगे एक बहुत ही होलसम रिलेशनशिप, एंड उस रिलेशनशिप के अंदर हो सकता है बहुत सारा संभोग हो, लेकिन आइडियल जिंदगी तुम्हारी भी क्या है, तुम किसी से प्यार करते हो ना, किसी के पीछे क्रश है ना तुम्हारा, एक इंसान के पीछे है ना, और अगर तुम्हारे पास ऑप्शन हो कि यार ये इंसान से तुम्हारी रिलेशनशिप हो, मिल जाए, वेरी लाइकली है तुम ये चाहोगे रियलिस्टिकली कि यार मैं ख्याल रखूंगा, मैं लॉयल भी रहूंगा, मैं काम भी करूंगा, मैं प्यार करूंगा, मैं इस इंसान को नाराज नहीं करूंगा, ये होंगी तुम्हारी भावनाएं. And he talks about sex way too much in his TikToks. And I don't like that. This is icky. It's to the point where he sounds like a high schooler at a sleepover trying to convince all his friends that he's definitely not a virgin and that he definitely knows where the clitoris is. What? All three of them. My nephew was in the back pool room and he comes up to me and goes, Christy is completely pissed. And I'm like, finish eating my food. And I go in the back room, I look back at him and I wink. I go in there and of course, here come the alligator tears rolling. This and this and this. And I'm whole frame. Next thing you know, got her bent over the bed. And I know my nephew can hear it. I come out, he looked like he saw a ghost. How insecure does this man have to be? What is this story? Is he talking about a child? A nephew who's, I think, is a child in this scenario. क्या बेवकूफ आदमी है अलग लोग. सोचो आचार्य प्रशांत ये एडवाइस दे रहे होते हैं, एक सेकंड में उनकी फॉलोइंग आधी हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे, सब लोग कहेंगे क्या कि उस इंसान को हम समझदार समझते हैं. वाई? क्योंकि उस इंसान ने ओवर द कोर्स ऑफ years एंड years एविडेंस दिया है कि वो कुछ समझदारी की बात करेगा, वो तुमसे कुछ ऐसी बात करेगा जो तुम कहोगे कि हाँ यार ये मेरी जितनी बेस लेवल अर्जेस जो हैं उनसे हल्का सा ऊपर उठ के एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के प्रति जाने वाला मुझे एक मार्ग मिला है. समथिंग दैट आई सी कि मेरे को इस मार्ग पे चलने से पीस मिलेगी. What he described is a 14-year-old's fantasy. लड़की आई ब्ला 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 ब्ला, अरे मुंह बंद कर, मैं फ्रेम अब सीधे फा और लड़की चुप. यहां पे जितने लोग भी रिलेशनशिप में हैं, मुझे एक बात बताना, जिंदगी में आउट ऑफ 100 टाइम्स इन योर लाइफ जब तुम्हारे पार्टनर ने एक प्रॉब्लम व्यक्त करी तुमसे, परसेंटेज क्या है कि दिस थिंग वुड हैव वर्कड, विल वर्क और विल एब्सोल्युटली बैकफायर on another level. यानी कि it's actually never gonna happen. It's a 14-year-old writing a fantasy story. Because problems come from a genuine place of something जो disrepair में है. Something is in a need of repair. वहां से प्रॉब्लम एमिनेट हुई है. कोई भी जो प्रॉब्लम एमिनेट हो रही है इसका जो सोर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इमेजिन्ड नहीं हो सकता, वो गलती से भी मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है, वहां पे मिस ट्रांसलेशन भी हो सकती है. रिपेयर इसलिए मतलब ये नहीं होता हमेशा फिजिकल रिपेयर हो, ये भी हो सकता है कि सिंपल करेक्टिंग द नैरेटिव, सिंपली चेंजिंग द नैरेटिव, सिंपली एक्सप्लेनिंग कि मिसकम्युनिकेशन हो गया, दिस इज व्हाट आई मेंट, एंड चीजें रिजॉल्व हो गई. इससे आप जो डायरेक्शन था उसका कोई लेना देना नहीं है. लेट्स से सुबह मेरा कोई भी पार्टनर है फलाना ढिमका, मैं 24 साल का हूं, ठीक है. उस पार्टनर ने कहा सुबह भाई मेरा ये काम है, ये कर देना. मैंने कहा हाँ मैंने सुन लिया, मैं कर दूंगा. शाम को वो इंसान आता है और मैंने कर भी दिया, वो कह रहा है तुमने ये नहीं किया, और वो काफी अपसेट है क्योंकि वो कह रहा है भाई तुमने सुबह कहा था कि तुम कर दोगे तो तुमने किया, और मैं कह रहा हूं मैंने लेकिन कर दिया. अब इस इंसान के हिसाब से कि लड़की एंड वो कहेगी थैंक गॉड. तुम्हें लगता है ऐसा होगा रियलिटी में कभी भी? दिस इज सेक्सिस्ट बियॉन्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिनेशन. बिकॉज हम कह रहे हैं लड़कियां इतनी बेवकूफ होती हैं, इसकी जनरलाइजेशन में डीप रूटेड इनग्रेन्ड जनरलाइजेशन है कि लड़कियों के दिमाग में उनकी जो बात है उसमें कोई तथ्य है ही नहीं, उसमें कोई वैल्यू है ही नहीं. वो सिर्फ ब्ल कर रही है जिसका सोल्यूशन है अरे इसको सेक्स चाहिए. सोचो किस खतरनाक लेवल पे अगर तुम अपनी ये तुम्हारा अगर जीजा बात कर रहा होता, ये कोई भी इंसान जिसको तुम वैल्यू करते हो, तुम्हारे अराउंड तुम्हारे दोस्त आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने इक्वल लेवल पे उखाड़ा है तुम्हारे सामने, जो तुम्हारे ऑफिस में काम करती है, जो तुम्हें दिखता है कि भाई डेंजरस दिमाग लड़की है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स खतरनाक हैं, स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल लड़की है भाई, टोटल अपनी काबिलियत से आई है. और सोचो एक इंसान उसके बारे में ये कह रहा हो, जस्ट फ्रॉम अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव मैं कह रहा हूं भाई क्या इंसल्टिंग चीज है दुनिया में. इतने सारे लोग जो कि इस दुनिया में जी रहे हैं जिसमें इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं,
जहां पे इंसान को प्रूव करना पड़ता है फिर अपने आप को एक्स्ट्रा केयरफुल रह के कि गलती से भी अनकॉन्शियसली भी ऐसा सिग्नल ना दे दे, क्योंकि ये इंसान सोचने लग जाएगा क्योंकि आई डोंट थिंक ये लड़कियों के इस मोल्ड के अलावा ये लड़की को दूसरे रूप से देखता है। इसकी सारी बातों में जहां तक मैं सुन रहा हूं उसके शब्द की कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारी बहन जब आके कंप्लेन करती है तुम ये बात अप्लाई करोगे कि अरे अभी सेक्स नहीं हुआ इसके साथ, को इसको सेक्स करेगा, ये चुप हो जाएगी। जाहिल बात है ना, वाहियात बात है ना, उल्टी आ गई ना यहां पे। ये ऐसी बात कर रहा है कि लड़की अगर इन जनरल कर रही है, finish eating my food, and I go in the back room. I look back at him and I wink. I go in there, and of course, here come the alligator tears rolling. This and this and this, and I'm whole frame. Next thing you know, got her bent over the bed. And I know my nephew can hear it. If I come out, and the nephew can hear it is उल्टी आ जानी चाहिए। ये ऐसे परिवार से आ रहा है भाई। सोचो तुम्हारे मामा या चाचा, तुम्हारे मामी चाची साथ ये करो, तुम सुन रहे हो, तुम 11 साल के हो। Wouldn't that be the most confusing day of your life, because suddenly you have been introduced to something जिसने सारे narratives and frameworks and schemas of grown-ups जिनको तुम मामा चाचा कहते हो, उनके पैर छूते हो, वो टूट गए सडनली। तुम्हारी मामी, मौसा, चाची जो भी लोग हैं उनको तुम अभी अपनी ऑलमोस्ट माँ के इक्विवेलेंट ही देखते हो। घरों में जहां पे प्यार है सबके, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो जब आते हैं तभी तुम इनके साथ एक अटैचमेंट फील करते हो, क्योंकि ये अटैचमेंट फिगर्स भी होते हैं बाय द वे। चाची तुम्हारी चाचा यानी तुम्हारे पापा के डायरेक्ट भाई, ये दीज आर किन, ये किन है तुम्हारे, डायरेक्ट जेनेटिक कोड्स हैं इनके साथ अटैच, उनकी वाइफ हैं। मामा तुम्हारी मम्मी के, तो अगेन तुम्हारा जो जेनेटिक जहां से आ रहा है पूरा, वहां से तुम्हारे डायरेक्ट किन है ये मामा। सोचो वो अटैचमेंट फिगर को सेक्सुअलाइज कर दिया जाए सडनली। अब तुम मामी को उस दिन के बाद से अलग ही तरह से देखोगे। क्या ये रूप या बीज नहीं बोएंगे एक बच्चे के दिमाग में अलग तरह के अब विचारों का? तुमने एक बच्चे को करप्ट नहीं कर दिया। you look like you saw a ghost. मूरख चंद हंस रहे हैं। मैं भी गधा हूं। insecure does this man have to be to not only feel the need to make sure that his 5-year-old nephew knows he has sex, but to also have the need to brag to your boys about making sure your 5-year-old nephew knows you have sex, and to feel the need to record and post you bragging to your boys. Because their target audience is mentally 14 साल के बच्चे या literally 14 साल के बच्चे। And if you think these people are cool, I'm so sorry. I'm really very sorry, my friend. तेरे को टाइम आ गया है थोड़ा सा अब अंदर जाने का। Really need to self-reflect, my brother. क्योंकि अगर ये कूल होते मैं तेरे साथ फिर अग्री कर रहा होता, लेकिन तेरे को लग रहा है ये कूल है। मैं हाथ जोड़ के तेरे से एक विनती कर रहा हूं, मैं कोई अटैक नहीं करना चाह रहा तेरे को, और मैं समझ सकता हूं शायद जिंदगी में बहुत सारी चीजों में डेफिसिट रहा है। हो सकता है भाई सेल्फ एस्टीम इश्यूज हों यार, घर में परेशानियां हों, तेरे को कोई प्यार करने वाला मिला नहीं, लड़की वड़की तेरे से सेट वेट नहीं हुई है, लड़कियों ने रिजेक्शन बहुत दी है, जिसकी वजह से आक्रोश है। मैं समझ सकता हूं ये लोग इस आक्रोश को यूज करते हैं भाई, बस ये ऐसी वाहियात बात करके ऐसे। मैं तुम्हें बताता हूं क्यों ये सब चीजें हार्मफुल हैं। ये बातें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होने वाली ही नहीं है, क्योंकि ये फिक्शनल बातें कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता ये कि ये कितनी मूर्ख लेवल की बातें हैं। तुम्हें लगेगा ये सही बात है क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है कंपेयर करने का। मैं तो बता रहा हूं रियलिटी ऐसे घंटा वर्क नहीं कर रही। मैं ये नहीं कह रहा हूं, एक चीज समझना, अगर तुम्हारे पास पैसा है, अगर तुम्हारे पास अच्छी खासी तुम वर्कआउट करते हो, तो तुम्हें लड़कियां नहीं मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा भाई, अटेंशन मिलेगी ऑब्वियसली। तो वहां तक तो मैं कह रहा हूं करो, वहां तक तुम्हें जोको विलिंग भी कह रहा है, डेविड गॉगिंस भी कह रहा है, उनकी सुन लो। जोको विलिंग की खुद की बेटी है, परिवार है, ये सब बातें नहीं कहेगा। जो रोगन तुमसे इसलिए ये सब बातें नहीं कर रहा क्योंकि उसकी 3 बेटियां हैं, परिवार है, पारिवारिक लोग हैं, ये सब ऐसी वाहियात बातें नहीं करेंगे लोग। लेकिन भाई वर्कआउट तो ये भी करते हैं दबा के, पैसा ये भी कमाते हैं दबा के। तो भाई पैसा तो बहुत कमाओ, वर्कआउट तुम भी करो भाई, अच्छा भी दिखोगे, अच्छा हेल्थ भी रहेगी बहुत लंबा। पैसा कमाना, वर्कआउट भी, और ये एडवाइस भी चले गए। यहां तुम फिर आगे तुम वापस जिंदगी में लॉक होना कि 14 साल की रियलिटी ये है, और वो 14 साल की रियलिटी परपेचुअल रियलिटी है। तुम चाहे कितना पैसा कमा लो, चाहे तुम कितना वर्कआउट कर लो। अब यहां पे थोड़ी सी धक्का और बुरा लगने वाली बात आने वाली है। तुम्हारे बाप बैठे हैं, एनी डे 50 तुम्हें हमेशा बाहर मिलेंगे जो तुमसे बेटर दिख रहे हैं, तुमसे बेटर बॉडी है उनकी, तुमसे बेटर जेनेटिक्स है उनके, और तुमसे ज्यादा पैसा है उनके पास। ये हमेशा रहेगा जिंदगी में। तो ये तो फिर तुमको और इनसिक्योरिटी में तब्दील कर देगा या पुश करेगा। अगर तुम इस भावना से जा रहे हो कि भाई अगर मैं वर्कआउट करता हूं, पैसा कमाता हूं, तो मैं ही मैं हूं, ये तो ईगो वाली बात आ गई ना।
इसीलिए कहते हैं हम्बल हो लाइफ में। तुम अपनी कैपेसिटी में, तुम अपनी सेल्फ एस्टीम के हिसाब से कितना अपने आप को रख सकते हो उस जगह पर जहां पे तुम कहोगे हाँ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। एंड दैट डज नॉट मीन दुनिया में देयर आर नॉट थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो कि प्रॉब्ली आर डूइंग बेटर देन मी एंड इट्स गुड फॉर देम। सिक्योरिटी ये होती है क्योंकि हम मैच्योर हैं, क्योंकि हम समझते हैं जिंदगी में हमेशा बेटर ऑप्शंस होंगे सबके लिए। 8 बिलियन लोग हैं यार, तुम्हें लोग मिलेंगे जिनके साथ न्यू रिलेशनशिप एनर्जी वाली फीलिंग आएगी और तुम्हें लगेगा हाँ यही सब कुछ है। जो 80-20%, या तुम्हारा सिंपल परेटो प्रिंसिपल भी ले लो कि भाई 80% जो है उसको लोग छोड़ देते हैं 20% जो नहीं है उसके चक्कर में। भाई ये कोई बात थोड़ी है समझदारी वाली। तो समझदारी यहां इसलिए आती है कि भाई जो है इसको बनाने में टाइम लगा, इसको मेंटेन करेंगे। इसलिए मैच्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिलेशनशिप्स में, बॉडी नहीं, पैसा नहीं। बॉडी एंड पैसा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैच्योरिटी है। जो कल तुम्हारे पैसे और अगर बॉडी से आया है साथ में, या सिंपल लड़की की बात कर लो तो उसके पास तुम गए हो, तुमको अगर कल उससे हॉटर लड़की मिलेगी और सिर्फ एक मात्र स्रोत सिर्फ शरीर है, तो भाई जहां वो एक दिन बूढ़ी होगी, 30 की होगी, 35 की होगी, तुम किसी 22 साल के पास वापस चले जाओगे। सिमिलरली कल तुम्हारे साथ वो है, कल लेट्स से तेरा कोई परेशानी हो गई, तेरे स्ट्रेस लेवल पे चल रहा है, तेरी जॉब में तेरी प्रॉब्लम्स हो गई, तेरा बिजनेस काम नहीं किया, तो किसी और को पकड़ लेगी। या भाई तेरा बिजनेस बढ़िया चल भी रहा है, भाई दूसरे इंसान का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, अगर ये मात्र स्रोत रह गए एक इंसान के साथ होने के, तो फिर रिश्ते तो मात्र सिंपल डील्स हैं, बेटर डील का हम वेट कर रहे हैं। इसलिए मैच्योरिटी होती है, क्योंकि मैच्योरिटी को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग होती है जो रिश्तों को बांध के रखती है कि भाई जिंदगी में कब तक करते रहेंगे। अगर ये डील का सिस्टम भी मेक सेंस लेट्स से एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में, बट ये डील्स कब तक चलने वाली हैं? रिश्तों का मतलब क्या है? इफ द थिंग वर्क्स, इफ इट मेक सेंस, देन अब हमने एक दूसरे को चुन लिया है एंड अब इसको चलाना है। दैट्स इट, दैट्स व्हाट अ मैरिज इज, दैट्स व्हाट अ रिलेशनशिप इज। इफ द थिंग वर्क्स, इफ इट्स डूइंग वेल, देन तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। बट इफ इट्स नॉट वर्किंग, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। About making sure your 5-year-old nephew knows you have sex. Because props to that 5-year-old, man. That's some top quality gaslighting and bullying right there. Hey, bud, want to play with this new toy I got you? Yeah. Okay, so first you twist it, okay, and then you bop it. Nice. And then you pull it. Why don't you pull some bitches? I also feel like this is illegal. Anyone agree? No? Just me? I agree. All right, moving on. Justin also gets really insecure about people talking about his jeans. I've seen a common theme in his podcast, and he always feels the need to point out that they are definitely not skinny jeans. He is, in fact, wearing jean-colored spray paint that he applies every morning. They call me gay. Constantly people giving about my jeans and my pants, bro. First of all, you have a world class. My legs are big. Is this just the style that you're a big fan of? You know my jeans? Yeah. I have a 32 waist, 36 long, and my quads. So why don't you just get wider pants? Yeah, I can go get really baggy jeans, but I also look like a fucking goober. Yeah, Justin, I mean, if it's just a matter of, and this is a stupid conversation to me, but I'm just seeing it as a guy conversation, like just guys having a dumb conversation. In that respect, The Rock has probably bigger glutes and ass and everything. He doesn't wear all the time, like he wears normal trousers. And whenever he's dressed up in Tobaro formals, he's wearing trousers and they don't look like Thor skinny jeans. Another guy, Jason Momoa, doesn't. So that's like a argument कि कह रहे हो कि भैया मेरा है और इसलिए मेरे को पहननी पड़ी। I think it's something you like. I think it's just something. It's the fashion you like, like those skinny, एकदम ही चिपकी हुई leggings type jeans. Yeah, I can go get really baggy jeans, but I also look like a fucking goober. yeah. The option is not between baggy and legging type jeans. There are in between काफी हैं यार, क्या बात कर रहे हो? Justin, I don't care how many times you say it. Saying those pants aren't skinny jeans doesn't make them not skinny jeans, okay? Just because I say everyone watching this will subscribe doesn't mean that everyone watching this will subscribe. But it'd be pretty cool if they did. If Dwayne The Rock Johnson can find well-fitting jeans, you sure as Wow. can. You think she won't leave you for that buff dude? Promise you, bro, she will. You think she won't leave you for that guy that makes a little bit more money? Promise you, she will leave. She will love you until she finds a better option. Yeah, no, sure. Not, see, I'll say something. Depends on person, depends on the situation. And I agree with him to a degree. Yes,
lot of people do that. It happens to a lot of people. So I understand like why this would make sense to a lot of guys, because a lot of guys have been through this. A lot of guys, let's just say किसी को आप प्यार करते थे and you've not really been through like cheating or something, but she picked an option जो कि जिसके पास पैसा ज़्यादा था. Most girls will pick guys who are richer. That's why तुम सिंपल शादी का तुम वो देख लो, कोई भी एड्स हैं तुम देखोगे जिन्होंने IIT IIM या जो भी तुम्हारा, अगर तुम्हारी सैलरी बहुत ज़्यादा है उनके पास चॉइसेस ज़्यादा होती हैं. इसमें it doesn't take a researcher to basically figure out कि oh yeah, girls like rich guys. Without a doubt, of the two markers, buff guy and rich guy, I think rich guy has much higher chance of obviously being picked. Secondly, then अब आता है भाई complexity. Women will most definitely invest in a man's potential. If you live a life जहाँ पे laziness is prominent, the likelihood that you will be dumped sooner or later is very, 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 very extremely high. It's as simple as that. A rich guy in the eyes of a girl is a guy who's actualized his potential. At least लड़की की नजर से अगर हम देखा जाए. And the reason why she likes that is because it's a well-settled life. Zindagi is easier with a rich guy. Preference of most gargantuan, extremely most amount of women will be कि भैया I would want to be in a relationship जहाँ पे long term में हम prosperity से जी रहे हैं. We seek prosperity in the comfort है, materialism है, safety है, security है. अगर मेरे बच्चे होंगे they will go to best schools, better schools. इसके साथ में मेरी जिंदगी safe है. एंड ये एवोल्यूशनरी है बाय द वे. इट्स एज सिंपल एज दैट. जो चीजें भाई 1.9 मिलियन साल से होती हुई आ रही हैं वो एकदम से चेंज नहीं हो जाएंगी. हाउएवर इन रिसर्च देयर इज अनदर साइड टू दिस जहां पे बहुत ही इगैलिटेरियन सोसाइटीज हो जा रही हैं, जहां पे तुम्हारी फीमेल मेल की जो इक्वालिटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है. जहां पे उन्होंने देखा है जिन भी सोसाइटीज में, आई थिंक ये तुम्हारी नॉर्वेजियन कंट्रीज की कुछ रिसर्चेज हैं जहां पे women are earning as much as men, वहां पे women actually don't mind this. ये चीज कम होती चली जाती है. तो तुम्हारी डेविड बस की रिसर्चेस में पाया गया था सेक्सुअल स्ट्रैटेजीज थ्योरी के अंदर ही कि women actually date like this. तो तुम्हारी जो सेम फाइंडिंग है सेक्सुअल स्ट्रैटेजीज थ्योरी वाली, ये इन सोसाइटीज में जहां पे इक्वालिटी ऑलमोस्ट क्लोज टू एकदम ही सेम है, वहां पे ये थ्योरी कपूट हो जाती है. वहां पे उन्होंने देखा एक्चुअली में लड़कियां ऐसे डेट कर रही हैं, उनको कोई माइंड नहीं करती. दे आर डेटिंग पीपल जो कि उनके इनकम ब्रैकेट के ही हैं या फिर उनसे कम के भी हैं. An explanation of that could be because life in those societies actual में hit कर रही है already comfort, security हर चीज को. Maybe वहाँ के जो environmental factors ये ऐसी हैं कि अगर आप decent amount of money कमा रहे हो, यानी कि अगर आप middle class हो, health care से लेके बहुत सारे factors हैं, वो इतने ज़्यादा well taken care of हैं by the government कि आपको पता है कि आपकी जिंदगी ऑलरेडी इतने रुपए में बहुत स्टेबल है. तो वहां पे मेरे को लगता है कुछ सोसाइटीज में जो रिसर्चेस शो कर रही हैं कि ये चीज सेक्सुअल स्ट्रैटेजीज, ये तुम्हारी लैटरल वाली डेटिंग वाली चीजें खत्म हो जाती हैं. इसीलिए क्योंकि जो जिंदगी में इंसान सीख कर रहा है प्रॉस्पेरिटी, वो हम दोनों उसी इनकम लेवल पे अचीव कर ले रहे हैं. क्योंकि जो एनवायरनमेंट बिल्ड किया है सोसाइटी ने, उस एनवायरनमेंट में सब कुछ है ऑलरेडी आपके पास. तो आपको मटेरियलिज्म में कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा कि और क्या हो सकता है. क्योंकि लोग एनवायरमेंटली इतने अवेयर हो गए हैं कि उनको कि भाई कार एक्चुअल में ये जो सिटीज जिस तरह से प्लान और बिल्ड करी गई हैं, और कि साइकिलिंग एक्चुअल में मच बेटर ऑप्शन है. तुम अगर सिंपल एम्स्टरडैम या तुम नेदरलैंड चले जाओ, वहां पे मोस्ट लोग साइकिलिंग करते हैं क्योंकि वो हेल्थी भी हैं, हवा भी बढ़िया है, हेल्थी भी रह रहे हैं, पैसा भी उनके पास चाहे कितना हो, CEO तक कंपनी का साइकिल से आ रहा है. तो उनका कल्चर ये हो गया है कि भाई कार्स जो एक बहुत बड़ा मटेरियल ऑब्जेक्ट हो सकता है दिखाने का, स्टेटस प्रोजेक्ट करने का, वो चीज नेगेट ही हो गई है. सिमिलरली इंसान अब एनवायरमेंटली अवेयर हो रहा है. तो इसलिए पता है करंट टाइम सिचुएशनल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सिचुएशन सब क्या हो गई, हम लोग एनवायरमेंटली अवेयर हो रहे हैं, हम ये भी समझ रहे हैं भौतिकता में भी कोई इतना वो थोड़ी है. तुम जितना कमा रहे हो, हम जितना कमा रहे हैं, हम मोर देन जो लाइफ में चाहेंगे वो हमें ऑलरेडी मिल रहा है इस सोसाइटी के अंदर. हमारी लाइफ बढ़िया है. सो उधर का अगर तुम हटा दो, वापस तुम अगर जगहों पे आ जाओ, इंडिया या फिर हाईली इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज में आ जाओ, जहां पे इंसान, जैसे अमेरिका हो गया, और अमेरिका में भी कुछ पैचेस हो गए, लार्ज पैचेस, जहां पे ये चीज सबसे ज्यादा है, स्टेटस सीकिंग. इंसान लैटरली कहेगा कि भैया मुझको ऐसे डेट करना है, या मेरे को जिसके साथ शादी करनी है वो ऐसे होना चाहिए. और मैन खूबसूरती सीख करते हैं. जो कॉम्प्लेक्सिटी को अगर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो, मेन चीज बेसिकली पोटेंशियलिटी है. अगर कोई लड़की एक इंसान के साथ है और उसको पता है इसका पोटेंशियल है डेंजर लेवल पे, और उसको दिखता है, यानी कि तुम्हें पता है, मैं छोटी सी बात कहता हूँ, दो लोग अगर IIT में पढ़े ना, आई अपोलोजाइज अगर मैं बार बार IIT के एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ, बट वो बहुत ह्यूरिस्टिक एग्जाम्पल है. तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, तो लड़का हो सकता है फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं कमा रहा, बट उसको पोटेंशियल दिख गया उस लड़के का. इज माय पॉइंट. तो ये भी कैलकुलेशंस होती हैं यार. सो आई थिंक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. इसलिए मैं कहता हूं भाई काम करो लाइफ में दबा के, क्योंकि कुल मिला के चाहे कितनी बात कर लो, चाहे कितना चाहो कि मुझे गहरा होना है, मुझे गहरा होना है, मुझे गहरा होना है, जिंदगी प्रैक्टिकल टर्म्स में चल रही है.
एनी डे मेरी तुम लोग से एक विनती होगी, अगर हो पाओ तो गहरा होने के बजाय मोर प्रैक्टिकल हो लो। मैंने गहराई में भी बहुत तैर लिया, बहुत डाइव मारी, इतनी गहराई में डाइव मार लिया। एनी डे प्रैक्टिकल विजडम, प्रैक्टिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो जिंदगी को स्ट्रीमलाइन करते हैं। गहराई ने तो मेरे अनुसार, मेरे हो सकता है वो प्रैक्टिकलिटी भी गहराई से ही आई हो। काफी गहराई में डाइव मारने से मुझे समझ में आया कि प्रैक्टिकल चीजें भी इसमें क्या है जो मैं ले सकता हूं, फिर वापस उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन मैं कहूंगा प्रैक्टिकल जिंदगी को जीने में ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वो वर्क करता है और उससे पीस भी मिल सकती है। एक और चीज बोलूंगा, मिल जाएगी, सेटिस्फैक्शन भी है उसमें। प्रैक्टिकली अगर जिंदगी को देख रहे हो और अगर तुम मानते हो कि ये खेल ही है कुल मिला के, और इसमें फेयर से कोई मतलब नहीं है, कुछ इक्विटेबिलिटी चल रही, हम कोई सोशलिस्ट समाज में नहीं रह रहे कि सब फेयर होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई इस खेल में तुम्हें जीतना पड़ेगा, और जीतना वाला माइंडसेट होना ही चाहिए तुम्हारा। सर्वाइवल का माइंडसेट ही जीतने का माइंडसेट है, वरना तुम वाइप आउट कर दिए जाओगे। तो भाई पैसा कमाना तो बनता ही बनता है, अपने लिए प्यार की प्राप्ति के लिए भी, प्यार को सस्टेन करने के लिए भी, बच्चों को खूबसूरत लाइफ प्रदान करने के लिए भी। यहाँ पे जितने लोग भी हैं, तुम लोग एक ना एक दिन तो बाप बनना चाहोगे, माए बनना चाहोगे। तुम लोगों को पता नहीं क्या गर्व महसूस होगा जिस दिन अपने बच्चे को सबसे बढ़िया स्कूल भेजोगे। तुम्हें नहीं पता भाई जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। लेट्स से अगर पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, किसी को कुछ भी तरह की परेशानी हो रही है, कि तुम आराम से अफोर्ड कर सकते हो। अगर मम्मी दादा दादी ये सब की अगर नहीं हो हेल्प, तो तुम आराम से एक फुल टाइम नैनी अफोर्ड कर सकते हो, जो तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारी वाइफ को या तुम्हारे पार्टनर को, लेट्स से अगर उनके पास, क्योंकि काफी हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के बाद, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। अगर उसको सोने के लिए 4 घंटे मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, रात को इंसान क्योंकि जगता रहता है बच्चे के चक्कर में, तो तुम लोग समझ रहे हो मानसिक हेल्थ कितनी ज्यादा लेवल पे तुम्हें वेरिएशन दिखेंगे। अगर किसी इंसान को एक्स्ट्रा केयर मिल रही है और वो अपनी सेल्फ केयर कर पा रहा है, सो पा रहा है, आराम कर पा रहा है, तो वो कितना खेला होगा। और वहीं एक दूसरी तरफ इंसान नॉन स्टॉप, क्योंकि बच्चा संडे को ब्रेक नहीं लेता, नॉन स्टॉप एक इंसान की नींद धज्जियां उड़ी हुई है, हार्मोनली अपसाइड डाउन है, लोगों के दिमाग उड़ जाते हैं। वो पैसा आता है यहां पे फिर फैक्टर, कोई अध्यात्म, कोई ये सब डेप्थ फिलॉसफी, ये सब कुछ नहीं हेल्प करेगी उस टाइम पे। सिंपल प्रैक्टिकल, क्योंकि बायोलॉजिकली हार्मोनली चीजें अफेक्ट हो रही हैं। स्लीप जो इस लेवल का आपको डिसरेगुलेट कर रही होगी, जो आपके मूड के पर खच्चे उड़ा रही होगी, वो बायोलॉजिकल नेचर है। आप कॉग्निटिवली चाहे कितने गहराई में चले जाओ, वहां पे गहराई की एक लिमिट है, कॉग्निटिव है इन नेचर वो। कल कोई कितनी गहराई की बात कर ले, 2 इंजेक्शन में तुम्हारे एस्ट्रोजन के डोज मारने लग जाऊं लौटने में, तुम्हारा बिहेवियर बदल जाएगा। तुम्हें समझ में नहीं आएगा मैं बिहेवियर क्यों बदल रहा है मेरा, क्यों? क्योंकि हार्मोन्स एक अलग ही लेवल का इफेक्ट है तुम्हारी बॉडी पे, इंपैक्ट है तुम्हारी बॉडी में। एट द एंड तुम एक न्यूरोलॉजिकल बीइंग हो, न्यूरो साइंस की और न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी की तुम्हें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। चाहे कॉग्निटिव एक लिमिट ही है, कॉग्निटिव की भी। ये बात लोग समझते नहीं है। लोगों को लगता है शायद सोचना एक ऐसा हथियार है जिससे हम पूरी तरह से अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। पप्पू, सब हथियार हैं और हर हथियार की तुमको उतनी ही रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी जितनी एक की कर रहे हो। कोई सुप्रीमेसी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमारा बायस है, क्योंकि वी कैन थिंक, वी पुट थिंकिंग एज सुप्रीम, बिकॉज वी कैन थिंक, वी हैव अ बायस टुवर्ड थिंकिंग। एक न्यूरोट्रांसमीटर हल्का सा कम फायर करने लग जाए, तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। एक न्यूरोट्रांसमीटर हल्का सा ज्यादा हो जाए, तुम्हारे पूरा बिहेवियर में चेंज आता है। गैम्बलिंग एडिक्शन, तुम्हारे पार्किंसन डिजीज जिनको होती है, उनमें उन्होंने पाया गया। क्यों? क्योंकि वो डोपामीन, उनको दवाइयां लेते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर की, तो डोपामीन की ज्यादा होने की वजह से वो गैम्बलिंग की तरफ उनका वो हो जाता है। अबे तुम्हें पता है पूरा बिहेवियर एक इंसान को, जिसने कभी गैम्बलिंग नहीं करी लाइफ में, समझ ले वो गैम्बलिंग डिसऑर्डर हो रहा है उसको। ये है ताकत। तुम्हारा कॉग्निटिव स्टैक कितना कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे कहने मतलब ये है। तो लाइफ में इसको गेम की तरह समझो, पोटेंशियलिटी को पूरी तरह से अपना गोल बनाओ। मैं अपने पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करूंगा एंड सरपास करूंगा, खत्म बात। यही मेरी जिंदगी का गोल है, मेरे जीवन का यही गोल है। तो पोटेंशियल मेरा क्या हो सकता है? ऑफ लेट्स से गेनिंग एनलाइटनमेंट भी। दैट्स माय पॉइंट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग, इट्स अबाउट इन एवरी सिंगल डोमेन। मैं 40 में भी बैठा हूं और मैंने अपनी लाइफ में कभी एक वेट नहीं उठाया। आई एक्नॉलेज कि मेरा पोटेंशियल है टू बी इन इनक्रेडिबल शेप। ये पोटेंशियल मैं अपना खुद को असाइन करता हूं कि मेरे अंदर है पोटेंशियल भाई टू बी इन एक्सट्रीमली गुड शेप। फिर मैं उसको एक्चुअलाइज करता हूं। ये है जिंदगी जीने का रंग। यू हैव टू बिलीव कि तुम पा सकते हो, तुम कुछ भी पा सकते हो। तुम्हें बस उसको एक गोल की तरह अपने सामने रखना है और फिर इस बिलीफ को इंट्रोड्यूस करना है कि ये अचीवेबल है। शंका भी नहीं होनी चाहिए, डाउट भी नहीं चाहिए। जब डाउट आए तो उसको देखो, कहो ठीक है, थैंक यू, आप आए, मैंने आपकी बात सुनी, मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन मैं करता चला जाऊंगा।
Sherlock, guess what type of person you're gonna attract when all you have to offer are money and muscles? No, seriously, guess, because I have neither, and I really want to know. And it's so easy to understand why Justin has this super one-dimensional view on women. It's because he doesn't see them as actual people, he just sees them as objects. And I mean like literally. Like, I don't mean like he objectifies women. I mean, I actually think he thinks that women are... It's just, I think, to him, they are mere utility for sex. That's it. That's the function he is attached to, I think, women. And that's why उसकी जितनी भी conversation women के around होंगी, they will somehow circle around sex. Inanimate. And providing, like अपने बच्चों को ख्याल रखना. So he just sees that as, क्योंकि वो खुद से नहीं करना चाहता, तो उसको delegate कर रहा है to these creatures जिनको वो use करता है इसके लिए. And then वो कहता है, अब मैं तुम पे पैसा फेंक दे रहा हूँ, बच्चों का भी ख्याल तुम ही रखो. Objects, like Lamborghinis. I'm not talking about 3 kids with 1 woman. I'm talking about if you can't handle 3 families, then I wouldn't have any, bro. It's like when they say you shouldn't buy a Lambo unless you can buy 3 cash. And French fries. And it's not even cheating with me because I'm not cheating on anybody. If I was on a diet right now and French fries hit this table. And literally assets on a balance sheet. You, my dear, are a depreciating asset. So, every day that goes by, you're going to be less and less beautiful. Hey, Julie. Yeah, just take a seat here. We have the test. And this is another thing. You don't marry beauty. You marry a person. I don't know. एक दिन तुम सब समझोगे ये बात. The thing is, beauty is not even a depreciating asset because beauty is as simple as that. Humans are novelty seeking beings. So तुम्हारे सामने ऐश्वर्या राय in her prime 20 में भी अगर तुम्हारी girlfriend या तुम्हारी wife होती, in about 21 or 22, you would have looked at Aishwarya Rai as like the second cousin या फिर तुम्हारा भाई. Because of the level of exposure, वो चीज़ उस saturation point में आ जाती कि तुम्हारे को जब वो पहली बार दिखी थी, जो novelty hit करी थी तुम्हारे दिमाग में, तुम उससे completely अब उसके opposite direction में खड़े हो. It's literally not having any effect on you whatsoever. This will happen with any person. So that's why हम Instagram में जब model को देखते हैं और पहली बार जब कोई आती है, हमारा लगता है कितनी सुंदर है. वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो पहली बार आई है. So try to understand this thing about your brain. इसको तुम हिडोनिक ट्रेडमिल भी कह सकते हो. हैप्पीनेस इसलिए जब पहली बार हमें जो चीज़ दिखती है, हमारे सामने आती है, फ़ोन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, नया लैपटॉप हो, दैट डे जो हैप्पीनेस हम एक्सपीरियंस करते हैं, ऑन द 44th डे या 365th डे तुम देखोगे उस ऑब्जेक्ट को लेके वो पड़ा है, वो तुम्हारी रजाई में कहीं कोने में वही चीज़ पड़ी है. इस बार फ़ोन पड़ा, वो 10 बार गिर चुका है, तुम्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और तुम एक्चुअली दूसरा मॉडल देख रहे हो, और वो जब मॉडल तुम देख रहे हो तो ये तुम सब ने एक्सपीरियंस किया है. तो वो सेम चीज़ दुनिया के सबसे सुंदर इंसान के साथ भी होगा. ये वही लोग नहीं समझ पाएंगे जिनकी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं है, अनफॉर्चुनेटली. और ये 14 साल में सबसे ज़्यादा है, 14 से 20, और आई थिंक इंडियन मैन में सबसे ज़्यादा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोगों की रिलेशनशिप नहीं है. तो आप एक्चुअल में कंप्लीटली इस चीज़ को सुन के आपको लग रहा है कि ब्यूटी इज अ डिप्रिशिएटिंग एसेट, जैसे कि एज से उसका कोई लेना देना है. सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू, यू मैरी अ पर्सन. अगर आप किसी बहुत सुंदर इंसान से शादी करते हो तो आपका प्यार धीरे धीरे कंप्लीटली रिलाय और डिपेंडेंट हो जाता है उस इंसान की पर्सनालिटी से, उसके जेस्चर से, उसकी बातों से, उसके आपके सपोर्ट सिस्टम से. आप जो भी डायनामिक्स उस इंसान से बिल्ड करते हो वो रीजंस होते चलाते हैं. सडनली आप उससे इतने लेवल पे प्यार करते हो फ्रॉम कितनी सुंदर है ये. क्योंकि कितनी सुंदर है ये, एज आई एक्सप्लेन, वो चाहे 22 से 24 की ही हुई है, वो है एक्चुअली अभी भी उतनी ही सुंदर. बाहर के लोग उसको देख के अभी भी कह रहे हो कितनी सुंदर है इसकी बीवी. तुम्हारे लिए वो चीज़ खत्म हो चुकी होगी क्योंकि तुमने उसको तुम पूरी तरह से एक्सपोजर में हो. वो नॉवेल्टी वही तुम हिडोनिक ट्रेडमिल पे हिट कर रहे हो तो तुम वापस अपनी बेस लाइन पे आ गए हो. लेकिन तुम उससे अब प्यार कर रहे हो बिकॉज ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स यू शेयर्ड विद हर, द थाउजेंड्स ऑफ मीनिंग्स यू क्रिएटेड, थाउजेंड्स ऑफ प्रॉमिसेस जो तुम्हारे बीच में हैं. तुम लोग एक दूसरे के साथ कैसे आते हो, कैसे साथ निभाते हो, अब तुम्हारा प्यार उस पर डिपेंड कर रहा है. उस प्यार की वजह से एक इंसान, जब दो लोग ऐसे रिश्ते में होते हैं, जब वो 40 की भी हो जाएगी ना, शी विल लव हर मोर देन एनी पर्सन ऑन द प्लैनेट. सिमिलरली शी विल लव यू मोर देन एनी पर्सन ऑन द प्लैनेट, चाहे तुम 46 के हो, 48 के हो, 50 के हो. द प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ दिस, व्हाट दीज गाइज से इज कि ये चीजें जब तक लोग समझेंगे तब तक वो खुद 40 के हो चुके होंगे. एंड तब तुम्हें समझ आएगा, वो मैं बेवकूफ़ बनाया जा रहा था मुझको बचपन में. एंड तुम फिर वॉर्न करोगे बहुत सारे यंग लोगों कि सब मूर्खता में मत पड़ो, ये बहुत बाइनरी, बहुत ही रिडक्टिव, बहुत ही स्टूपिड चीज़ें हैं. सुनो, मैं यहाँ पे बहुत बुरा लगने वाला होगा बहुत सारे मर्दों को, लेकिन मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, एनी डे, ये तुम भी जानते हो दोस्त, मैं भी जानता हूँ, चाहे कितनी गाली बकरो लड़कियों को कि ये 3 हैं या 2 हैं, उसके DM में 5000 लड़के पड़े हैं. एनी डे उसको तुमसे 5000 गुना सक्सेसफुल इंसान मिल जाएगा.
लगेगा बुरा, मैं समझ सकता हूं, बट ये सच्चाई है दोस्त। चाहे तुम कितनी गाली बक लो, चाहे उसके 3 बच्चे हों और वो डिवोर्सी है 45 की, उसको उस दिन भी 2 दिन के अंदर उसको एक खतरनाक लेवल का प्यार करने वाला मल्टी मिलियनेयर खड़ा है। तुम शायद लगेगा कि मेरे को यहां पे ये भैया ने, जस्टिन भैया ने कहा है नहीं मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया है अब ऐसी, तो हम क्या करें। तो तुम्हें लगता है कि इस तरह की कोई फेयरनेस है कि लड़की 45 की हो गई है, उसको कोई नहीं मिलने वाला, ब्यूटी डेप्रिशिएटिंग एसेट है, भाई वो 55 की भी उसको मिल जाएगा। भाई सॉरी, तुम्हारी ये आक्रोश और ये तुम्हारी जो अनइमेजिन्ड ये है ना फेयरनेस, इगैलिटेरियन सिस्टम, ये रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें लग रहा है लड़कियां आधे से ज्यादा आजकल क्या कर रही हैं, जानबूझ के बेट कंटेंट बना रही हैं। उनको पता है इससे भैया शॉक कंटेंट होता है, तो वो कह रही है मैं 35 साल की हूं, मैं सिंगल हूं, व्हाई देयर आरंट एनी गुड गाइज एनीमोर। और सारे नीचे लड़के यही होता है, तुम्हें 35 की है, वैसे तो मजे कर ले। तुम्हें एक सेकंड नहीं सोचा कि मे बी वो बस इसलिए बेट कंटेंट बना रही है, उसको पता है इस पे इतना भयंकर लेवल पे कमेंट्स आएंगे, उसका ये पोस्ट फट के आदमी ऊपर चला जाएगा। मे बी शी जस्ट वांट्स इंस्टाग्राम फॉलोइंग एंड शी इज ऑलरेडी नोटिस कि ये बेट कंटेंट बहुत चलता है, और इतनी इजीली thousands of men across cultures, across nationalities बेट में आ जाते हैं गाली बकने में उसको। And I just see it, I'm like, the likelihood कि इसको नहीं पता है क्या कर रही है। तो मेरे सीरियसली लगता है 35 साल की लड़कियों के पास जहां पे आदमी नहीं है, अवेलेबल नहीं है। हर तरह के मर्द हैं दुनिया में यार, 8 बिलियन लोग हैं भाई, बहुत सारे मर्द हैं जिनको कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। मैं जेन्युइन में बता रहा हूं। अब तुम उनको गाली बक रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तुम उनके साथ डिसएग्री करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एग्जिस्ट करते हैं। मेरा पॉइंट ये, सबको कोई ना कोई मिल जाएगा, लड़कियों को मिल जाएगा भाई। तो 35 की भी उसको भी मिल जाएगा, 44 की उसको भी मिल जाएगा। तुम उसको लेके गाली बक के कुछ नहीं होने वाला। ब्यूटी से डिप्रिशिएटिंग एसेट, हाँ मैं खुश हो गया सोच के कि एक दिन 10 साल बाद इसकी जिंदगी तबाह होगी। कैसा ख्याल है ये? कहां जाके तुम अपनी मरवा रहे हो? अबे अपनी जिंदगी में सुख शांति ये सब पे वो नहीं है फोकस। दूसरे इंसान की जिंदगी को हम गाली बकेंगे, तेरे पास आज खूबसूरती है, इसको मैं न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा हूं, ये डेप्रिशिएट हो रही है डेली, हा 40 पे जाके तेरे पास कोई नहीं मिलेगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। काहे के बन रहे हो भाई इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर? क्यों बन रहे हो? मुझे एक चीज समझ नहीं आती, इस लेवल की खतरनाक एस्ट्रोलॉजी करके क्या मिल रहा है? यही सेम एनर्जी तो सिंपल अपनी पोटेंशियलिटी पे पुट कर ले, और उसके बाद क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता दूसरे इंसान की, किसी को हो सकता है मिलेगा, किसी को ना मिले, उनकी जिंदगी, उनकी चॉइसेस। मैं इंसान से मिलूंगा तो इंसानों से मिलने के लिए मिलूंगा। यानी कि भाई तुम्हारी खूबसूरती, चाहे तुम कितने खूबसूरत हो, चाहे 22 के हो चाहे 40 के हो, अगर हमारे साथ रिश्ता स्टार्ट होता है, उस खूबसूरती वो एक बेसलाइन बहुत जल्दी हिट कर जाएगी। तुम 1-2 साल में, 1 साल के अंदर ही तुम्हारे लिए वो खूबसूरती इतनी वैल्यूबल नहीं रहेगी। और अगर तुम खूबसूरती सीख कर रहे हो, सिर्फ लड़की ऐसी होनी चाहिए, तो तुम जिंदगी भर 22 साल की अलग अलग लड़कियों को ही डेट करते रहोगे, क्योंकि एक को डेट करोगे 6 महीने बाद वो सुंदर नहीं लगेगी तुमको, फिर इसलिए तुम्हें दूसरी बार जाना पड़ेगा। तो तुम यही करते रहोगे, तो तुम जिंदगी भर एक 14 साल के बच्चे रहोगे मेरे भाई। और ऐसे मर्द भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं एक बात कह रहा हूं ऑब्जेक्टिवली, और उनको यही चेस करना है भाई। ऐसे तो भाई कोई भी लड़की या कोई भी तुम्हारी सारी जितनी भी हमारी माएँ हैं, जितनी भी तुम्हारी मौसियां घरों में, जितनी सारी औरतों को छोड़ देना चाहिए मर्दों को, क्योंकि उनकी ब्यूटी डिप्रिशिएटिंग एसेट है। जैसे वो इंसान की कोई वैल्यू थी नहीं, वो इंसान कुछ है ही नहीं, उसका कोई योगदान है ही नहीं। औरत की एकमात्र वैल्यू हमने ब्यूटी रख दी, तो औरत सिर्फ एक सेक्स करने का ऑब्जेक्ट है। और जहां उसकी सेक्स करने की यूटिलिटी खत्म हो गई, यानी कि अब वो अट्रैक्टिव नहीं लगती, तो अब क्या करे भाई? बात बताओ, वो इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये वही बात है ना जो मैं इसने कही, और मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था, भाई हर आदमी अगर लड़की के लिए वो बस पैसा कितना है, तो वो एनी डे तुम्हें छोड़ती रहेगी नए आदमी के लिए, क्योंकि एनी डे उसको मिलेगा कोई ना कोई जो उससे ज्यादा पैसा कमा रहा है। भाई हम कहते हैं हमारे देश में सबसे अमीर आदमी अंबानी के ऊपर भी बैठे हैं ना भाई, जो ज्यादा पैसा है। तो तुम तो अंबानी से कभी कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। अंबानी तक भी एक्चुअल में टॉप पे नहीं है। जो लोग टॉप पे हैं वो भी टॉप पे नहीं है, सच्ची ये है। उनके भी बैठे हैं बाप जिन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी अपनी इनकम। Results back from your biopsy. Okay, just give it to me straight, doc. Okay. This would be difficult to hear, but your Q2 results came back below analysts' expectations. Oh my God. While we managed to reduce your inventories to reasonable levels, your accounts receivable still remain elevated. I think it might be time to take drastic action. Well, what are our options? Look, we can do an immediate cash flow injection, but that'll only get us to Q4. I think it might be time to divest some of your offshore assets. Why is this happening to me? Look, guys,
I believe myself to be a fair and objective person. I will give credit where credit is due. Justin Waller is a very, very successful individual. He is well connected, and if the sources I'm looking at are true, he is genuinely a self-made man. The problem with all of these alpha male influencers is that while some of the things might be true and might help young men out, their tactic is to build a cult of personality around themselves to make sure that everyone following them takes all of their words as gospel. That's where I draw the line. Because even if some of the things they say is helpful, a lot of the things they say are flat out wrong and extremely detrimental to a young man's abilities to develop meaningful relationships or to develop or just complex, diverse thinking. The thing is not what he's saying is like, usme there is not a sprinkle of truth in it. Yes, a lot of girls do go for rich guys without a doubt, and वो सच है. But थोड़ी सी diverse thinking रखो. थोड़ी सी उसको एक स्पेन ऐसे दो कि ठीक है पहले तो मुझे पोटेंशियलिटी पे काम करना है, एंड दूसरा कि तो तुम एक चीज देखोगे लड़कियां ऑफ कोर्स चाहती हैं कि भैया हाँ यार रिसोर्सफुलनेस हो, पैसे वाला हो, बट दे ऑल्सो अगर तुम किसी से बात करोगे दे रियली रियली वैल्यू एक इंसान का नेचर कैसा है, एंड दीस थिंग्स ऑल्सो मैटर. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अ थिंग कैन हैव मल्टीपल आंसर्स एट द सेम टाइम, एंड वन ऑफ अ डोमिनेंट आंसर इट कुड बी मनी, बट देयर आर मल्टीपल आंसर्स. जिंदगी में चीजें इतनी बाइनरी नहीं है, एंड जो इंसान जितनी हद तक इसको कंसिडर करके आगे बढ़ेगा वो उतना क्लेवरली ऑपरेट कर पाएगा. मेरी एडवाइस सही गलत की नहीं है, मेरी एडवाइस है क्लेवर बनो, मेरी एडवाइस है डिप्लोमेटिक बनो, मेरी एडवाइस है स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट बनो, मेरी एडवाइस है डाइवर्स थिंकिंग लाओ कि भाई लोग एक्चुअल में काफी चीजें कर रहे हैं जो अगर उनसे पूछोगे तो उनको पता भी नहीं है. तो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट. हो सकता है एक इंसान क्लेम कुछ कर रहा हो और उसका एक्शन कुछ और ही हो. हम वेरिएशन ला ही नहीं रहे अपनी थिंकिंग पे, हम आइदर और पे खेल रहे हैं. हम ये नहीं कह रहे कि 4 चीजें हो सकती हैं. और मैं हमेशा इसलिए ये कहता हूं प्रैक्टिकल थिंकर बनो, प्रैक्टिकल थिंकर बनो. मैं आई डोंट नो पे खेलता हूं अंटिल डेटा आए. मेरे को नहीं करने जजमेंट पास. मैं थोड़ा सा एम्पेरिकल रियलिटी को पीछे रख के बढ़ूंगा सिचुएशन में. ऑफ कोर्स कि भाई लड़कियां ऑब्वियसली अमीर लोगों पे जाती हैं, ठीक है, दैट्स इनफ, दैट्स सफिशिएंट. बट मैं जजमेंट नहीं पास करने लग गया अब जिस भी लड़की से मिल रहा हूं कि वो ऐसी है, क्योंकि मैं जब भी किसी भी इंसान से मिला हूं अपनी लाइफ में, और मैं लड़कियों की बात कर रहा हूं, सब में मैंने एक ओशन पाया है ऑफ पर्सनैलिटी, ओपिनियन, प्रेफरेंसेस, सब में, और कॉन्ट्रडिक्शंस उनमें बहुत कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है. पीपल आर देयर ओन पीपल, फुली फ्लेज्ड फॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग्स हैं वो. कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एबिलिटीज उनकी, उनकी चॉइसेस कई बार तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस और एम्पेरिकल एविडेंस को धज्जे उड़ा देती हैं. इसलिए पर्सन टू पर्सन बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम तुम्हारी नोमोथेटिक अप्रोचेस. कि इन जनरल मतलब होता है कि वो एग्जिस्ट करता है एक जनरल पॉपुलेशन में, बट इसका मतलब ये नहीं है वो ही सिर्फ एग्जिस्ट करता है और वो पूरी तरह से एग्जिस्ट करता है. यानी कि किसी एक इंसान में परसेंटेजेस में भी हो सकता है टेंडेंसी है कि हाँ मुझे लड़का ढूंढना है पैसे वाला, पहला स्टेटमेंट. लेकिन अब उसने कंडीशन डाल दी, मैं चाहती हूं वो ऐसा ना हो, ये चीजें ना हो, ये ना हो. अब वो कंडीशन से क्या हो रहा है, पहली जो कंडीशन थी वो डायल्यूट हो जा रही है सिर्फ 20% पे, क्योंकि नई कंडीशंस अब नई कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस फॉर्म कर रही हैं, प्रेफरेंसेस फॉर्म कर रहे हैं. तो सिर्फ पैसा अब नहीं रहा उतना कॉम्प्लेक्स. उसके लिए है कि उसमें ये भी हो, ये क्वालिटीज हो, या फिर ऐसा कुछ हो, या फिर उसके साथ ये ना हो. तो ह्यूमंस में मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई सेल्फिशनेस से भी वो चीजें मिलेंगी जो तुम्हें एक्चुअली काफी फेयर लगेंगी सुनने में, एक्चुअली मैच्योर लगेंगी सुनने में. मेरा कहना ये है ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स हैं. इतने डेंजरस जनरलाइजेशन में इसलिए मत घुसा करो. लोगों से जब मिलोगे तुम्हें दिखेगा उनकी एक अपनी पर्सनालिटी रिस्पॉन्ड करती है, उनकी अपनी एक स्ट्रांग सोच है. true self-worth. They teach men to develop this nihilistic worldview about women and dating and relationships, and that the only value you can bring to the world as a man is money, which is completely false. I think men can express their worth and masculinity in so many more ways than this limited mindset that Justin Waller and Andrew Tate have. That's kind of the lesson I want to end on today. I don't think masculinity in general has anything to do with money. I would say biologically, masculinity has existed way before money was invented. See, money is only a tool for status. And उसके बाद भी आप एक तरह के लोगों को ही मेजरली अट्रैक्ट कर रहे हो. यानी वो लड़की जिसको सिर्फ पैसा चाहिए, जिस दिन उसको दूसरा पैसा वाला मिलेगा तुम्हारे भी लात दे देगी वो. ये थोड़ा सा तुम एक नार्सिसिस्ट दूसरे नार्सिसिस्ट से मिल रहा है, ये तो वैसा रिश्ता हो गया. मैस्कुलिनिटी इज अ पूल ऑफ वेरी डिफरेंट क्वालिटीज जो कि हमें ऑलमोस्ट ना जानते हुए ना सोचते हुए हम पिक्चर्स में हीरोज के थ्रू पोर्ट्रे करते हैं. कैप्टन अमेरिका इज नॉट अ रिच पर्सन, इज नॉट अ मल्टी मिलियनेयर, तब भी आपके अंदर एक भावना आती है एस्पायर करने की, क्योंकि वो फेयर इंसान है, वो मदद करता है किसी के लिए. तुम्हें पता है अकेला अगर कोई इंसान है, कोई कहीं फंसा हुआ है, कुछ भी कर रहा है, तो वो अगला अपनी जिंदगी लगा देगा उसको बचाने के लिए. ये आइडियल्स हैं मैस्कुलिनिटी के. इट्स नॉट बीइंग अ प्रेडेटर.
एंड ये लोग जो हैं ये लार्जली प्रेडेटर्स हैं। ये इस दुनिया में दुनिया को प्रेडेटोरियली देखते हैं और इसीलिए वो पैसे को बेट की तरह यूज कर रहे हैं ताकि लड़कियों को हंट कर पाएं। और उसमें वो लड़कियों को भी वल्नरेबल, मासूम, परेशान या फिर हो सकता है बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिकली इंक्लाइंड, उन्हीं को ही कर पाएंगे। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, ये इनका रिजेक्शन रेट बहुत हाई है इन अमंग्स्ट एनी वुमेन जो कि बहुत ही गरीब जगहों से नहीं आ रही या फिर बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रही हैं, जो अच्छे घरों से आ रही हैं, वहां से इनको 100% बता रहा हूं बहुत ऊपर लेवल का रिजेक्शन मिला होगा, बट ये कभी मेंशन नहीं करेंगे। बहुत हद तक देखो, साइकोलॉजी प्लेज इनटू एवरीथिंग, इकोनॉमिक्स प्लेज इनटू एवरीथिंग, रियलिटी यही है, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो भाई आप अगर इकोनॉमिकली वल्नरेबल इंसान को जो पूरी तरह से कहीं बहुत ही खराब सिचुएशन में उसको दिखा रहे हो कि भाई इतनी बढ़िया तुम्हारी सिचुएशन बदल सकती है, द लाइकलीहुड कि वो इंसान बाय कर लेगा वो इज वेरी हाई। सिमिलरली साइकोलॉजिकली एक इंसान जो बहुत बुरी तरह से बुरी कंडीशन में है, टूटा हुआ है या फिर बहुत वल्नरेबल है, तुम्हारा अभी न्यूरोलॉजिकली तुम्हारा ब्रेन अभी डेवलप ही नहीं हुआ, तुम बहुत यंग हो, तो तुमको इंपल्सिविटी तुम्हारा ट्रेट इतना हाई है कि तुम्हें बहुत आसान है बेवकूफ बनाना। तुम ऐसा करो, किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के साथ करके दिखा दो जो पीएचडी करें, उन लड़कियों की उम्र 24-25 साल की होती है। अब उसमें ले लो 1000 जो खतरनाक लेवल पर रिसर्च कर रही हैं, जिनके पास दिमाग है, जिनकी जिंदगी जो अच्छी जगहों पर रह रही हैं, भाई दिखाओ उनमें से कितनी लड़कियों को उसने डेट किया हुआ है। ये कभी नहीं बताएंगे, दूर रहेंगे, अपना रिजेक्शन रेट कभी शेयर नहीं करेंगे। इंटेलिजेंट इंसान के साथ, और बात इंसान है वर्ड, इनके परखच्चे उड़ जाएंगे क्योंकि वो इनके जनरलाइजेशंस को एक्सपोज कर देंगे। Men, you do not need a Lamborghini or a Bugatti or millions of dollars to be valuable as a man. Women, No, you don't. That's true. And even if you can afford it, I know तुम लोग से बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग हो जिनकी शायद लाइफ में अभी तुम लोग के पास पैसा आएगा भी, बिलीव इट और नॉट, है तुम लोग में से ही हो, और तुम लोगों ने अटैक मोड ले रखा है, तो बहुत बड़ी चांसेस है तुम लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे क्योंकि इतने ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्सिबल वे में तुम काम कर रहे हो। द पॉइंट इज, बहुत सारे तुम में से लोग होंगे जो क्लियरली इनके पास ऑप्शन होगा भाई मैं बुगाटी खरीदूं, और तुम क्या करोगे, एक्चुअली में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दोगे। दैट्स माय पॉइंट, क्योंकि तुम समझदार हो, तुम गधे नहीं हो। are worth so much more than just your bodies and your youth. We all have something unique to bring to the table. It just takes a little bit more time for some of us to find what that something is. Anyways, that's all. And lastly, at a certain age, you'd also realize कि you know this thing कि भूख पैसे sex की भूख, it's an age-related thing as well. I think with maturity, you realize like sex भी like it's not a solution to things. बहुत ही cyclical है. It does not give you satisfaction. It does not give you any kind of peace. And then you realize, oh, ये तो एक addictive cycle है. It's just an addictive cycle. कोई peace नहीं मिलती, कोई satisfaction नहीं मिलता. And the thing is, the more you grow in life, the more you realize कि एक अंदर यहाँ पे एक भावना है, मुझे वो fulfill करनी है. जो existential crisis होती है, I think midlife crisis होती है, वो यही होती है. वो बहुत सारे लोग उनमें से हैं जिनको बहुत ज़्यादा sex मिला हुआ है. क्योंकि यहाँ अंदर कुछ है जो पूछ रहा है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं यहाँ खुश हो पाऊँ यार. और उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है. आंख बंद करता तो यहाँ अंदर से अकेला जब बैठा होता हूँ, मुझे अंदर से पता नहीं क्यों अकेला और बुरा फील करता हूँ. आई फील लॉस्ट. तो वो चीज को है कि यार कि इसका सोल्यूशन क्या है. कर लिया सेक्स के बाद लेटे हैं तब भी वही फील कर रहे हैं. ये मैं कह रहा हूँ, और ये होता है सबके साथ कि तुम्हें पता लगे भाई सेक्स तो सोल्यूशन था ही नहीं. तो 14 साल के बच्चे वाली चीजें थी. और सेक्स का भी सोल्यूशन अगर सिंपल एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू देखो, वो रिप्रोडक्शन है. सेक्स का फंक्शन तो रिप्रोडक्शन ही है ना. कोई मीनिंग प्रोवाइड करना थोड़ी था लाइफ में कभी. तुम्हारी एवोल्यूशनरली सेक्स का होल पूरा पॉइंट अक्रॉस स्पीशीज, बाय द वे सारी स्पीशीज करती हैं, ऑलमोस्ट, नॉट सारी, सेक्स तो कर रही है ना. वो क्यों कर रही हैं? स्पीशीज प्रोपोगेशन के लिए ना, ताकि अपने तुम जेनेटिकली अपने आप को आगे इंश्योर कर पाओ, तुम्हारे जीन्स ना मरे. खत्म बात. उसका पीछे तुम ये हो ही नहीं सकता कि तुम कहोगे भाई ओ दिमाग के तार खुल गए सारे, इसी में खुशी है, इसमें सब मतलब है, इसी में ही सब कुछ है. भाई कितने कपल्स हैं जो रोज सेक्स करते हैं एक दूसरे के साथ, प्यार करते हैं एक दूसरे से और जिंदगी भर करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो गहरे प्रश्न नहीं पूछते. वो ये नहीं पूछते यार जिंदगी में क्या चीजें हैं जिनसे हम लोग हम लोग कह सकते हैं यार जिंदगी में सुख है. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये सब बड़े हो गई. दीज आर ऑल साइंस ऑफ मैच्योरिटी इज व्हाट आई एम सेइंग. दे जस्ट आई वुड से आर्टिकुलेट, हाईली अनएजुकेटेड, नार्सिसिस्टिक बॉयज.